وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے اپنا جسم کتنا ڈھانپے گی، کتنا کھلا رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ایک عورت کے سامنے اپنا جسم کتنا ڈھانپے گی، کتنا کھلا رکھے گی۔ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ اپنے محرم کے سامنے کتنا کھلا رکھے گی، شوہر کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے، شوہر کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ غیر شوہر کے علاوہ جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، چچا ہیں، ان کے سامنے عورت کتنا کھلا رکھ سکتی ہے، اس کی کتنی لمٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں کہ وہ اپنی زینت کو نہ دکھائیں، نہ ظاہر کریں، الا یہ کہ جو کام کے دوران گھر کے کسی کام کرتے ہوئے جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، عموماً عادت کے طور پر جو عموماً ظاہر ہو جاتی ہے، اتنا کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ تو عادت کے طور پر عموماً کام کرتے ہوئے کیا کیا چیز ظاہر ہو سکتی ہے، تو علماء نے اس کی تحدید کی ہے کہ سر کے بال ہیں، جیسے چوٹی نظر آئے، بال ہیں، گردن ہے، نیک۔ اسی طرح وضو بناتے وقت جو جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں کوہنیوں سمیت، اسی طرح پیر ہیں ٹخنوں سمیت۔ بعض علماء نے ایک دوسرا ضابطہ بھی پیش کیا ہے، اس کے لیے کہا کہ جو بھی فتنہ نہ پیدا کرتی ہوں، فتنہ نہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، وہاں تک کر سکتے ہیں۔ بہرکیف پیٹ کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، کمر کا حصہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں فتنے کی ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہر ہرگز نہیں کریں گے۔ پیٹھ بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل علماء نے اس سے بھی نکالی۔ ایک صحابی اپنی ایک بیوی کو کہتے ہیں، انت علیہ کظہر امی، آپ کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی جیسی ہے، ماں کی پیٹھ کی طرح ہو گئی۔ یعنی جس طرح ماں کی پیٹھ کو دیکھنا حرام ہے، اس طرح وہ صحابی اپنی بیوی کو بھی حرام کرنے کے لیے وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تو علماء یہاں سے نکالتے ہیں کہ ماں کی پیٹھ محرم کے لیے یعنی بیٹے کے لیے بھی دیکھنا حرام ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ عورتیں اس بات کا بالکل ہمارے خیال نہیں رکھتی ہیں، بلاؤزز ایسے سلاتی ہیں کہ جس میں پیٹھ دکھتی ہے، کمر دکھتی ہے، ساڑیاں ایسے پہنتی ہیں کہ جس میں کمر کا حصہ نظر آتا ہے، سینے کا حصہ نظر آتا ہے، بلاؤزز پہنتے ہوئے بھی۔ بعض لوگ شلوار پہنتے ہیں، پنجابی پہنتے ہیں، پنجابی پہنتے وقت بھی گلا اتنا، پیٹھ کا حصہ اتنا کھلا رہتا ہے، اگر پورا نہیں تو بھی کم سے کم ایک چاند کی طرح گول بنایا ہوا اور پیٹھ نظر آتی ہے پیچھے سے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہا، اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، یعنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ جس طرح ہاتھ میں عورتیں زیور پہنتی ہیں، انگوٹھیاں پہنتی ہیں یا بنگڑیاں پہنتی ہیں سونے کی وغیرہ یا دوسرے، تو ہاتھ کی جگہوں کو یعنی ایسی جگہیں جہاں جو زینت کی ہیں ان کو عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، سر کے بال ہیں، گردن ہے، اور جو وضو کے بناتے وقت میں جو حصے نظر آتے ہیں، جو حصے کھل کر کے آتے ہیں۔ بعض لوگ رشتہ دار کے نام پر کزن کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں، محرم میں کزن کو بھی، یعنی پھپھیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے وغیرہ بول کر کے اندر لا لیتے ہیں، جیٹھ ہے، دیور ہے، یہ تمام غیر محرم ہیں، یہ تمام غیر محرم ہیں۔ ہرگز ان کے سامنے اپنی زینت کو، اپنے جسم کو ظاہر نہیں کرنا ہے، مکمل پردہ کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت ڈھانپ کر کے رہنے کی چیز ہے،
पूरा जिस्म ढांप करके रहना है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एक औरत के से कितना पर्दा करेगी, कितना हिस्सा जिस्म का छुपाएगी, औरत से कितना जिस्म का हिस्सा छुपाएगी। इस सिलसिले में उलमा के दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौल हैं, मजबूत कौल हैं, ओपिनियन है। पहला ओपिनियन है कि जिस तरह औरत अपने महरम मर्दों के सामने, वालिद के सामने, भाई के सामने जितना अपने जिस्म को छुपाती है, उतना ही एक औरत के सामने छुपाएगी। और सलफ़ में इस ओपिनियन को कहने वालों में इमाम इब्न तैमिया हैं रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं और उनके शागिर्द हैं, और हनफी मज़हब का एक बहुत बड़ा तबक़ा ज़ाहिर रिवाया में यही इस बात का कायल है, यानी हनफी इस बात के कायल हैं हनफी मज़हब में। और हनाबिला में भी बहुत से हनाबिला मज़हब के तौर पर नहीं, यानी बाज़ उलमा ने इस बात को कहा है, जिस तरह इमाम इब्न तैमिया हैं वग़ैरह। अगरचे कि इमाम इब्न तैमिया एक मुज्तहिद मुतलक़ हैं, मगर उनके अलावा भी हनाबिला में बाज़ उलमा ने इस ओपिनियन को, इस राय को ज़ाहिर किया है। इब्न तैमिया कहते हैं अपने फतावा में, इन्ना लिबास अन्निसा फ़ी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना सातिरन मिन कफ़्फ़िल यद इला कअबिर रिजल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सलफ़ का तरीक़ा ये रहा कि औरतें अपने जिस्म को अपने हाथ से ले करके पैर तक ढांप करके रहा करती थी। और मौजूदा ज़माने में सऊदी अरबिया की एक बहुत बड़ी कमेटी है, फतावा लजना दाइमा, उन्होंने भी औरत की लिमिट को वही लिमिट कहा जो लिमिट एक महरम मर्दों के सामने एक औरत ज़ाहिर करती है। सऊदी अरबिया की कमेटी है बड़े किबार उलमा की, उसको फतावा लजना दाइमा कहते हैं। उसमें उन्होंने 17वीं जिल्द में 290 सफ़े पर उन्होंने इस मसले को जिक्र किया और कहा कि एक औरत के सामने वैसे ही रहेगी जैसे अपने वालिद के सामने होती है, बेटे के सामने होती है। और ये ज़्यादा मुनासिब भी ओपिनियन है, सबसे ज़्यादा सही ओपिनियन भी है, इस वजह से भी कि इसमें एहतियात है, अहवत यही है फितने से बचने के लिए औरतों के लिए। वरना औरतें अगर अपना सीना वगैरह नहीं ढांपेंगी, उसका ख्याल नहीं करेंगी, सिर्फ अपने कमर से लेकर के घुटनों तक ढांपेंगी, तो आगे चल करके होमोसेक्सुअल जन्म लेगा। औरतों के साथ खुशी मनाएंगी, मज़े लेने वाली बन जाएंगी, आदी हो जाएंगी। होमोसेक्सुअल जिसको कहते हैं, हम जिन्स परस्ती, वो जन्म लेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी सख्त इस सिलसिले में वईद वार्निंग दी है। कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, औरतें होंगी, कपड़े पहनेंगी मगर वो नंगी नजर आएंगी, माइल कर रही होंगी और खुद भी माइल हो रही होंगी। इससे पता चला कि औरतों का लिबास जितना ढका हुआ होगा उतना ही उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि औरतें अगर अपना जिस्म नहीं छुपाएंगी तो वो इस वार्निंग में शामिल हो जाएंगी। और इसमें काफिरों से भी मुशाबहत होती है, काफिर औरतों से भी, हिंदू औरतों से, गैर मुस्लिम औरतों से। गैर मुस्लिम औरतें अपना जिस्म बताती हैं, अपनी कमर खुली रखते हैं, अपना सीना खुला रखते हैं, अपनी पीठ खुली रखती हैं, उनके ब्लाउजेस इतने छोटे होते हैं, साड़ी पहनती हैं तो भी कमर नज़र आती है। तो इसमें गैर मुस्लिमों से मुशाबहत भी होती है। तो अगर एक मुसलमान औरत अपने जिस्म को ढांपे तो गैर मुस्लिमों से मुशाबहत भी उससे दूर हो जाएगी, मुशाबहत भी नहीं होगी। उलमा का एक दूसरा ओपिनियन ये भी है कि एक औरत की लिमिट औरत के सामने औरत के कमर से लेकर के घुटने तक है। इसको सलफ़ में, मुतक़द्दिमीन में, पुराने उलमा में हनाबिला हैं, हम्बली मज़हब के लोग, इसी तरह शाफ़ी मज़हब के लोग, इसी तरह मालिकी मज़हब के लोग इस बात के कायल हैं, उनका ये ओपिनियन है। और ये ओपिनियन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दो रीज़न की वजह से, दो सबब की वजह से। पहला सबब है, इनकी दलील ये है, वो ये कहते हैं जिस तरह मर्द की लिमिट
कमर से लेकर के घुटनों तक है, इसी तरह औरतों की लिमिट भी औरतों के दरमियान कमर से लेकर के घुटनों तक है, जबकि ये क़ियास सही नहीं है, क्योंकि औरत का जिस्म मर्द के जिस्म से मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ख़ुद औरतों के दरमियान में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ख़ुद औरतों के दरमियान में भी औरतों एक मर्द का सीना अगर कोई मर्द देखता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता है, इल्ला है कि कोई जिम बॉडी बिल्डर कुछ ख़ास पार्ट मेहनत करके बना ले कर ले, एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शनल है, मगर फितरी तौर पर पैदाइशी तौर पर एक आम जिस्म जो होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, या अगर होता भी है तो ख़ासकर जो अमरद है, छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए अमरद के सिलसिले में मना कर दिया गया है, दो सबब से बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक तो क्या मर्द का जिस्म उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, उसके बावजूद भी उलमा ने फुक़हा ने कहा कि मर्द का जिस्म भी अट्रैक्टिव हो सकता है, इसलिए ज़्यादा शहवत को भड़का सकता है, इसलिए ज़्यादा एक मर्द दूसरे मर्द के जिस्म को ना देखे, अमरत पर गौर ना करे। औरत तो बदरजा औला इसमें शामिल है, औरत का जिस्म तो बदरजा औला इसमें शामिल है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है मर्द के सिलसिले में। और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस ओपिनियन को कहने वाले लोग ख़ुद ये कहते हैं कि इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि जिस्म का हिस्सा कमर से लेकर के ऊपर का बग़ैर ढाँप करके भी अगर कोई औरतों के दरमियान में बैठ सकती है, कि इसका ये माना हरगिज़ नहीं है, कहते हैं। इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ला यानी ज़ालिका अन्नना नुजव्विज़ु लिल-मरअा अन तल्बस थियाबन ला तस्तुरु इल्ला मा बैन अस्सुर्रति व-रुकबा। इसका माना ये हरगिज़ नहीं है कि हम औरत को जायज़ बता रहे हैं कि एक औरत अपने कपड़ों को सिर्फ कमर से लेकर के घुटनों तक ही ढाँपे, ऊपर ना ढाँपे, बल्कि ऊपर अगर कोई नहीं ढाँपती है तो हराम है, जायज़ नहीं है, कहते हैं इब्न उथैमीन, जायज़ नहीं है। वाजिब है, ज़रूरी है कि एक औरत अपने जिस्म के हिस्से को पूरी तरह ढाँपे रहे। अलबत्ता ये दूसरी ओपिनियन के लोग ये कहते हैं कि कमर से लेकर के घुटनों तक का ढाँपना फ़र्ज़ है, लिमिट है, और कमर से लेकर के ऊपर के हिस्से को ढाँपना भी ज़रूरी है, वाजिब है, मगर इसकी दलील हया है, हयाअन वाजिब है, कहते हैं दोनों वाजिब है, ऊपर का हिस्सा भी ढाँपना वाजिब है, नीचे का हिस्सा ढाँपना भी वाजिब है। ऊपर का हिस्सा हया की वजह से ढाँपना वाजिब है, और नीचे का हिस्सा लिमिट की वजह से ढाँपना वाजिब है। मेरे कैफे कुछ अल्फाज की हेरा फेरी है। सब लोगों का इस बात पे इत्तिफाक है कि जिस्म को एक औरत अपने औरतों के दरमियान में जब होगी तो वो जिस तरह महरम मर्दों के सामने यानी वालिद के सामने ढाँपती है, उसी तरह ढाँपना वाजिब है। और ये वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के उमूम में ये भी एक औरत का औरतों के दरमियान में भी दाखिला हो जाता है, क्योंकि औरत की लिमिट के सिलसिले में कहीं भी कुरान और हदीस में वाज़ेह नस नहीं है, वाज़ेह हदीस नहीं है। तो ये जो आम आयत आई हुई है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में, ये भी दाखिल हो जाएगी कि औरतें अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें, इल्ला है कि जो आम तौर पर काम करते वक्त में ज़ाहिर हो जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि सर का हिस्सा ना गर्दन है, इसी तरह वज़ू बनाते वक्त में जो हिस्से ज़ाहिर होते हैं।